Welcome back, viewers. Today, based on my own personal experience, I am going to share certain finer points about a screening test. Okay, all right. Uh, First point: present yourself as if you were already an army officer. Okay. What I mean here is कि आप सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं, किस लिए? Because you want to be an officer in the defense services. Okay, why are they screening you out, or what for they are you screening in? For defense forces. So when you go, आप जब उसके लिए जा रहे हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट टेस्ट विच इज हैपनिंग. फर्स्ट टाइम आप जो इम्पोर्टेंट एसेसर्स हैं उनकी नजरों में आ रहे हैं, तो फिर उस समय आपका जो अपना ओन प्रेजेंटेशन है, इट मस्ट गिव एन इम्प्रेशन दैट यू आर एन ऑफिसर मटेरियल. Just by appearance of it. Okay, the way you conduct will come later, but like they say, first impression is the best impression. Okay, so what do I mean when I say this? Okay, you should be wearing a proper dress befitting the occasion. Cannot be कि जीन्स पहन के चले गए, आप चप्पल पहन के चले गए हैं, या सैंडल्स इवन पहन के गए. प्रॉपर पैंट, शर्ट, शूज, लेदर शूज. Okay, that is the minimum requirement. Okay, what we generally advise, or anybody who is dealing with interviews would advise you, better to wear a dark colored trouser and a light colored shirt. Okay, if you feel comfortable, you want to wear a tie, absolutely on cards. Okay, but if you are not comfortable wearing a tie, it is too much of a discomfort to you, or it gives an impression that probably you are wearing it for the first time. Even you go open collar, it is absolutely fine. Okay, should not be wearing long hair. आप अगर मॉडलिंग के लिए जा रहे हो, प्लीज बाय ऑल मींस जैसा आपको ठीक लगे, और फ्रेंच बियर्ड और सम फनी स्टफ, वो इधर कुछ छोटा सा दाढ़ी सा लगा के जाता है. ओके, तो प्लीज गो देयर एज इफ यू आर ऑलरेडी एन ऑफिसर. हाउ डज एन आर्मी ऑफिसर लुक? आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन. Okay, so you should have proper haircut, you should be clean shaven. Okay, if you are a sick person, you should be wearing a proper turban. Okay, not के आपने कुछ पटका सा लगा के चले गए. So that is what I mean. Properly आपको, और the way you walk, go, occupy and conduct yourself, that is also very important throughout the screening process. Like I said, जिस मिनट आप एंटर करते हो और जब आप डिस्कशन के बाद बाहर निकलते हो, each and every moment of yours is under observation of those three SSs. Okay, so this is what I mean, and plus it has got a psychological aspect also. मैंने कहीं अपने स्मार्ट लेसन्स में वीडियोस डाले हैं आपको, कि जैसा आप फील करते हो, जैसा आप सोचते हो, वैसा ही फील होगा और वैसा ही आपका एक्शन होगा. तो यहाँ आपकी सोच ये होना चाहिए कि I'm already an army officer. I deserve to be an army officer. With that kind of a feel, if you enter, you groom yourself accordingly, you behave yourself accordingly, then half the battle is already won. Okay? But on the contrary, you go shabbily dressed, आपके शेव बड़े हुए हैं, बाल बड़े हुए हैं, जीन्स आपने डाली हुई है. Well, you are starting with a handicap. Prepare well for OIR test. Okay. प्रीवियस वीडियो में आपको एम्पली क्लियर हो गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है OIR में अच्छे मार्क्स लाना, और ये दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइंड ऑफ प्रैक्टिस यू डू इन एडिशन टू योर IQ, राइट? बट फॉर ए सेम IQ person, one going without preparation, another going with a lot of practice, right? I'm sure the one who's going with practice with the same IQ will be able to get better marks in OIR test. That is my personal experience. Okay, first three tests are in your control. Okay, they are absolutely in your control. What are these three tests? Your OIR, your story writing, and your narration. मैंने पहले explain किया. Okay, absolutely in your control. Okay, depending on the composition of the batch, the fourth portion, that is the discussion part. Okay, वहाँ डिपेंडिंग ऑन कि बाकी के कैंडिडेट्स किस तरीके से हैं, वहां पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आपका डायरेक्ट कंट्रोल का वो चीज नहीं है. बट फर्स्ट थ्री टेस्ट आर एब्सोल्युटली इन योर कंट्रोल.
व्हाट डज इट मीन? डोंट गो विद दैट आइडिया फिश मार्केट। अरे फिश मार्केट नहीं हो रहा है जब आप OIR कर रहे हो, चाहे रिपीटर बैच हो चाहे कोई भी बैच हो। ओके, आप स्टोरी जब लिख रहे हो कोई फिश मार्केट नहीं हो रहा है, पिन ड्रॉप साइलेंस से। और जब आप 1 मिनट खड़े होकर नरेट कर रहे हो अपनी स्टोरी बाकी ग्रुप मेंबर्स को, पिन ड्रॉप साइलेंस, नोबडी इज डिस्टर्बिंग। So please have that clarity in your mind. Story has to be yours. Goes without saying. TAT, bulk of this test PPDT का है, right? Is based on TAT. You know it. TAT के लिए जो सारी चीजें एप्लीकेबल थी वो भी यही एप्लीकेबल है। एंड इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपने अगर बाकी सारे टेस्ट के लिए तैयारी की है, ज्यादातर तैयारी आपकी इधर हो चुकी है। ओनली आई एम sharing certain finer points with you, okay, which may not have been covered when I explained lecture 8, TAT, progressive group tasks or group planning, etc. Okay, which are very relevant for screening test. बहुत इंपॉर्टेंट, आपने ऑफिशियल पिछले स्लाइड के अंदर देखा था, कम्युनिकेशन इज a huge issue. It is number 2 important factor for rejection. Okay, and communication is not what you are saying. More of it is how you are saying it, what is your tone, and that time what is your body language. Actually जो communication experts हैं, और शायद मैंने भी body language के वीडियो में ये चीज़ कवर की है, more than 80% of communication is happening through your body language. Your subconscious has to support that, right? So please maintain good body language throughout. Okay, when will that happen? When you are confident of yourself, when you are presenting yourself well, when you are prepared for these tests well, and then in a group situation आपका जो ग्रुप इफेक्टिवनेस है वो निकल के बाहर आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज इन प्लेस। बट आप नर्वस हो, आप डरे हुए हो, आपके लेग्स शिवर कर रहे हैं, आप अपने टेबल पे बैठ के कुछ पेन से टक 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 कर रहे हो, नोज को बार बार टच कर रहे हो, दीज आर ऑल साइंस ऑफ नर्वसनेस एंड इट विल शो। आपके बोलते वक्त नजर आएगा, राइट? आप जिस तरीके से लोगों को एड्रेस कर रहे हो नजर आएगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, मेंटेन ए गुड बॉडी लैंग्वेज थ्रू आउट। ये नहीं कि मैंने स्टोरी पढ़ दी और उसके बाद आप अपना किसी और तैयारी में लग गए, या आपका टर्न आने वाला है स्टोरी नरेशन के लिए, आप सुन नहीं रहे हो कि पहले वाला क्या बोल रहा है, यू आर बिजी अपना दिमाग के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हो। नाउ दैट इज क्वाइट विजिबल ऑलरेडी। जब दूसरा कोई नरेट कर रहा है अटेंटिवली सुने। नरेशन, टाइम मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो वन ऑफ दोज क्राइटेरिया जो मैंने ऑफिशियली लिस्टेड है। टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ देम। तो टाइम मैनेजमेंट व्हाइल यू आर राइटिंग योर स्टोरी, दैट 4 minutes. टाइम मैनेजमेंट व्हेन यू आर नरेटिंग योर स्टोरी। ओके, आपको 1 मिनट मिले हैं और मैंने कहा ये आपका टाइम है, nobody can disturb you. तो आप जो स्टोरी है उसको इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर, मोस्ट कंसाइज मैनर अपने ग्रुप मेंबर्स की एड्रेस करते हुए इन ए नेचुरल वे यू शुड बी एबल टू नरेट दैट स्टोरी. Okay, don't narrate this story to assessors who may be sitting in front. You will be making a mistake. Participate in discussion with an open mind. What do I mean? Open mind. जब भी होगा जब आप अपनी स्टोरी आपने दे दी, ठीक है, आपने अच्छी भी लिखी होगी, but be open to others' ideas. Maybe somebody has a better idea. Or if you think your story has got certain good points, then you should have that conviction. Right? कि आप लोगों को कन्विंस करें, बट इन एन ओपन मैनर, इन ए कोऑपरेटिव मैनर, इन ए टीम मेंबर काइंड ऑफ ए माहौल. कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने बोला, राइट? मोस्ट ऑफ इट इज योर बॉडी लैंग्वेज विच इज कन्वेइंग मोर देन व्हाट यू आर सेइंग. ठीक है कि नहीं? लैंग्वेज जो मीडियम है एसएसबी का कंडक्ट करने का, इंग्लिश है. ट्राई एंड स्टिक टू द मीडियम. अगर हो हिंदी में आप कर सकते हैं, बट स्पीकिंग इन हिंदी लैंग्वेज थ्रू आउट मे बी एन इम्पेडिमेंट. व्हाई आई एम सेइंग सो? क्योंकि सभी कैंडिडेट को पता है कि भाई क्या रिक्वायरमेंट है, मीडियम क्या है. तो अगर आपने मेहनत की है, कोशिश की है, आपके पास डिटर्मिनेशन है, राइट, आप चीज को जानने की जिज्ञासा रखते हैं,
तो आप अगर फ्लुएंट इंग्लिश ना बोल पाए पर आप कम से कम इंग्लिश तो बोल सकते हैं। पर अगर आप केवल हिंदी में ही बात करना चाहते हैं थ्रू आउट, ऑलराइट, जबकि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल या कॉलेजेस अगर अंग्रेजी हुआ है, तो इसका मतलब आपने जो रिसोर्सेज थे आपके स्कूल पे या जो टाइम था उसको सही इस्तेमाल नहीं किया है, और ना आपके अंदर वो लगन है, ना आपके अंदर वो फायर है कि मैं कुछ चीज नई चीज सीख सकूं। दैट्स द काइंड ऑफ डिडक्शन पीपल विल ड्रॉ। अगर आपको मौका मिलता है, लोग आपको नॉमिनेट करते हैं या आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो वॉलंटियर करने की, ठीक है, तो गिव कॉमन स्टोरी, ग्रुप की जो स्टोरी है वो दें, ना ना कि आप अपनी जो स्टोरी है ग्रुप में कुछ भी डिस्कशन हुआ है आप उसको खड़े होके बोल दें, थिंकिंग कि अरे मेरी स्टोरी सबसे अच्छी है और आपने ऑन टाइम में कभी तैयारी भी की हुई है उसकी, वो बात बनती नहीं है। इवन इफ इट इज ए रिपीटर्स बैच, देर आर सम डिस्ट्रक्टिव मेंबर्स, so like that 25% where you are discussing to arrive at a common story, okay, that time this kind of a fish market may be there, होता है, कई बार होता है। बट बिलीव यू मी, जो जीटीओ है जो पूरा डिस्कशन कंडक्ट करता है वो मॉडरेट करेगा टू ए वेरी लार्ज एक्सटेंट, ताकि लोगों को बोलने का मौका मिल जाए। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो यू डोंट बिकम पार्ट ऑफ फिश मार्केट without you are just contributing to creating that fish market, then it is not good, all right। और अगर लगता है पूरे ग्रुप के अंदर एक या दो कोई मेंबर है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या दूसरों को बोलने नहीं दे रहा, और आपको लगता है कि आपके पास वो अथॉरिटी है या आपको लगता है कि आप उसको इफेक्टिव ढंग से मॉडरेट कर सकते हैं, बाय ऑल मीन्स डू इट, यू विल गेट ए गुड मार्क। बट वो चीजें है नहीं और आप खुद भी शाउट करने लग जाओ और फिर एक्सपेक्ट करो यार एसेसर्स को कि सभी ऐसे हैं तो अब क्या मेरा नंबर आ जाए कहीं से अगर मैं ज्यादा शाउट करूं या कुछ करूं, नो, ओके, यू आर डिस्प्लेइंग योर फैक्टर टू पॉलिटिक्स दैट टाइम, ओके। सो डोंट बिकम पार्ट ऑफ द फिश मार्केट, एंड फिश मार्केट कैन नॉट कंटिन्यू फॉर 10 minutes, बिलीव यू मी, GTO will intervene. Right? He will probably divide that group into two half and say first, okay, 6-7 persons in one group, and then in two go he would conduct this discussion. Okay, so find a suitable time in that fish market, make your points, and if you can assert yourself to bring some kind of a order there, right? By all means do it, but don't do it mechanically. Don't do it by shouting. Okay, it doesn't pay. And these are some of the things I wanted to share with you. With this, I come to the end of very important thing, that is screening test. Okay, if you've gone through all these videos, what I have posted on main SSB as well as for this screening test, I'm sure you would have got a pretty good idea that why screening test is so important. Okay, इसका importance है, आप इसको ignore नहीं कर सकते, और इसलिए इसके लिए तैयारी सही तरीके से करने में ही आपकी भलाई है, राइट। अगर आपको स्क्रीनिंग में मौका मिलता है तब आप अपना सही पोटेंशियल मेन टेस्ट में दिखा पाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली अगर स्क्रीनिंग में ही आप नहीं कर पाते हैं तो जैसा मैंने पहले भी बोला है, आपकी सारी मेहनत रिटन टेस्ट क्लियर करने की या जो भी मेन एसएसबी में होगी वो उसका कोई मायने नहीं रखता है। नेक्स्ट आई थिंक आई विल स्टार्ट विथ गिव यू सम आइडिया अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके बारे में शायद नॉलेज या जानकारी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, दैट इज कॉन्फ्रेंस प्रोसीजर। ओके, दैट कॉन्फ्रेंस विच हैपन्स at last. Okay, so I'll give you a little insight on those things. Till then, all the very best. Thank you.